Kamimo, Apeng, Jule, and Jahar. So before I start this session, on behalf of the Tribal Design Forum and all of us here, we wish you a happy 79th Independence Day of India and welcome to the day 15th of Tribal Futures 2.0, which is a month-long online event that celebrates the creativity, skills, and knowledge of tribal communities organized by the Tribal Design Forum. It showcases design, crafts, technology, and storytelling, presenting identity as a source of leadership and innovation rather than marginalization. Through daily features, discussion, and thought provoking ideas, the series invites audience worldwide to see how tribal creators are shaping the future on their own terms. This is the second edition of the Tribal Futures Showcase, highlighting voices from a wide range of tribal communities across India and beyond. From Bodo to Meena, Garo to Irao, Khasi to Munda, and Van Gujjar to indigenous artists overseas. It brings together leaders in art, film, design, technology, and traditional knowledge. Together, this global network of talent reimagines tribal futures, grounded in heritage, driving innovation, and inspiring the world to recognize indigenous creativity as vital to tomorrow. Tribal Futures 2.0 is organized with the support of Adivasi Academy Tejgarh and Bhasha Research and Publication Center, Vadodara, with Green Hub as the film partner. And today, we are very delighted to have our guest speaker, Prakash Muherjee, who is a distinguished artist, singer, environmentalist, and tribal culture conservationist from Varli Adivasi community from Keltipada village within the Ari forest in Mumbai, Maharashtra. He belongs to the Varli tribe, renowned for its unique and intricate style of painting. He has dedicated his life to preserving and promoting his community's cultural heritage. His artwork often reflects the Varli people's deep connection to the nature and their traditional way of life. Alongside his artistic work, he is also a committed environmental and indigenous right advocate. He has been at the forefront of efforts to protect the Ari forest, a vital green expanse, and the ancestral home of his community, which is under threat from the large-scale development project. All his efforts to protect the environment are closely intertwined with his music, in which he blends traditional Varli melodies with contemporary sounds to raise awareness and inspire actions. Prakash Muher has collaborated with the Mumbai-based hip-hop collective Swadesi, most notably contributing to the song The Varli Revolt, a powerful statement on the Varli people's struggle against displacement and environmental destruction. Today, he continues to create art and music that celebrate Varli tradition while standing up for the environmental and the rights of indigenous community. The format of today's session is 45 minutes of interaction with Prakash Muher, followed by a Q&A session of 15 minutes. Before we begin interacting with Prakash Muher, I would like to show one of his video songs, and then we will proceed with him. So please hold on, let me play the video. आमच्या पद्धती आहेत ऐतिहासिक या रानाचा मूळ निवासी जीव आणतो पडसर मातीत प्राण हिरवा माझा देव आहे वागोबा प्रगती तुमच्या बाद आमच्या जंगलात न मागवा पैसा किती दाखवाल भौतिक सुखाचे चाखरवाल भविष्य तुमचे हायला बाड मी जगतो हाय तो वर्तमान प्रगतीची तुमचे भोग पाहता पैसे छापते कोण झाडे आमची कापते कोणी जंगलात मेट्रो मागते कोण झाले हाय जगणे दुःख हे पिंजऱ्यात घालता जनावर मुखे केले मालमताचे तुकडे पाहू न दे तुम्हा आकाश मोकळे गोड बोले नेता ते सोंगाडे आदिवासीचे घर मने झोपडे सोंबडे तर लबाड बोंबले सोया खिशामध्ये रोकडा कोंबले जाऊ आम्ही का तुमची पुढं पाणी पाहू तरी किती तुमची फसवणी निशिदीने आवाज देता अशा असती आता बघ तुम्हाला कपाळ तटी धरीने बातमी होईल राटी आता यात मध्ये येईल क्रांती भीत ना तुला मी दिलं का माझी हासी हासी चढवो फासी माणूस म्हणून जगण्यासाठी
आम्हाला सारं करायचं अरे माणूस म्हणून जगण्यासाठी आम्हाला सारं हे करायचं अरे आज नाही उद्याला मरायचं मग कशाला माग सरायचं अरे आज नाही उद्याला मरायचं मग कशाला माग सरायचं हमें ना पसंद है खोटा विकास ना है तुम जैसे चोरों पे विश्वास मेट्रो बनाने उखाड़ो तुम झाड़ जब झाड़ ना बचेगे कैसे लोगे सांस घर मेरा जंगल खुला आकाश तुम आए त्रास देने करने इसका नाश प्रकृति का बनाओ मजाक यही प्रकृति से बनी मानव जात तुम आज रहे हो हमें भगा जिनके हमसे तुम हमारी जगह बस बचा ये जीने का तरीका तुम वो भी जिनके करे हमें तबाह सजा पक्षी प्राणी की है क्या क्यों इन्हें बेदखल कर रहे ऐसा उद्योगी सरकार हमें रहे फंसा हमें बटा के ये बना रहे पैसा और बसा रहे भलती सोच भविष्य में इनके बच्चे देंगे इन्हें दोष पर अफसोस वो ना देख सकेंगे वो सहते हुए अपने अगली पीढ़ी को खुद तुम जियो और जीने दो लगाओ पौधे जब तक जीवित हो मूर्खो उठो अपनी सोच बदलो या ना कुछ बचेगा फिर खोने को जीने को एक है प्राण उसकी भी कागज में तुम मांगो पहचान आदिवासी हूँ गरीब इंसान कैसे साबित करूँ मेरा है स्थान मैं किसान हूँ गाऊँ अनाज और हर प्राणी मेरे परिवार समान खुद पे करो तुम बस एक एहसान बचा लो अपनी ये सोने की खान गावाशेजारी पडी करान पिकवल आदिवाशान गावकुंड हराम खोरान त्याची केली आदुळदान जर का गुन्हा केला पुन्हा त्याला तेथेच गाडायच अरे आज नाही उद्याला मरायचं मग कशाला माग सरायचं अरे आज नाही उद्याला मरायचं मग कशाला माग सरायचं जंगली जंगली जिंदगी पाहिजे आम्हाला जंगली खावाले जंगली पावर मातीचे नकर मायशी जोडून दोस्ताने वाले हाय जनावर कुकू म्हटल्या बरोबर एका आवाजावर सारे अंगावर तुम्हाला टोलक म्हणते मला तर पाठीमाग किती गंदी हालत मंत्री नंदी सारखे डोलत गुलाम बनून राजाचा थाट आदेश देते की जंगल का लावाले तर नाही येत कोणाचा बाप सिमेंटचे मधले टाकले भोबळे तरी बी पाहिजे छमियाला या जंगलात एकीन नाचतो धरून साऱ्याच्या हातात हात तारपा ढोल वारली बोल वाजते नाचते या जंगलात बायको पोर हार्ड पोर बहीण भावासारखा समान निसर्गाच्या रंगानं जगात फेमस आमचा वारली आठ स्वतःचे घरनं अन्न बनवतो नाही हो आम्ही कोणाची गुलाम गाड्या मोठ्या सवयी तुमच्या इंधनाची तुम्ही करत बाई कारखाने देते जैरीला धुवानं तरंगते ढकाची काळी मलाई बंदूक माराले पैसा पण जनतेच्या भुकीचा इलाज केला नाही इतिहास देते साक्ष वारली कधी बी भुकीनं मेला नाही देशभक्त लोक तुम्ही ना त्याग आम्हा काय मागता देशभक्त लोक तुम्ही ना त्याग आम्हा काय मागता अरे जंगल असे आमची आई रक्षणात जीव जाई रक्षणात जीव जाई रक्षणात जीव जाई जंगल असे आमची आई रक्षणात जीव जाई रक्षणात जीव जाई रक्षणात जीव जाई झाड तुम्ही तोडून टाकता त्याग आम्हा काय मागता अरे देशभक्त लोक तुम्ही ना त्याग आम्हा काय मागता डोळ्यात देखत उजेड चोरिता त्याग आम्हा काय मागता त्याग आम्हा काय मागता त्याग आम्हा काय मागता त्याग आम्हा काय मागता तो काफी पावरफुल वीडियो था वर्ली संस्कृति के ऊपर एंड उनके संघर्ष के ऊपर। तो अब मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रकाश भोर जी का। प्रकाश भोर जी, जोहार। ट्राइबल डिजाइन फोरम में आपका स्वागत है। जोहार। जोहार। आप सभी को जोहार, सभी साथियों को जोहार। जोहार। और अभी हमने ये वर्ली रिवॉल्ट का गाना देखा, वीडियो देखा। तो पूरी जो वर्ली संस्कृति है और उस संस्कृति का क्या संघर्ष का टकराव है, उसके क्या मुद्दे हैं, उस सारे मुद्दे उस वीडियो में दिखाई पड़ते हैं। और जो गीत आपने गाए हैं वो भी काफी सटीक गीत थे। तो सेशन शुरू करने से पहले जो पहला जो सवाल है मेरा, जो हम जानना चाहेंगे आपसे, कि हम जब भी वर्ली आर्ट को हम सबने देखा है, बहुत जगह देखा है, हर जगह देखा है, तो हम तो भूल ही गए थे कि किसी को पता भी नहीं होता है कि वर्ली जो है वो एक समुदाय भी है और वर्ली एक संस्कृति भी है। सभी को लगता है कि वर्ली केवल एक पेंटिंग ही है,
तो हम जानना चाहेंगे कि वर्ली क्या है, वर्ली क्या है, वर्ली संस्कृति क्या है, वर्ली समुदाय क्या है। अ, वारली समुदाय एक बहुत पुराना समुदाय है यहाँ पे, जो सालों से अ, इस भारत में रहते आ रहा है। और उनकी संस्कृति हमने हमने देखी कि वारली पेंटिंग के माध्यम से उनको जाना जाता है, तो वैसे बात नहीं है। उनकी अलग सी एक संस्कृति है, उनका एक अलग से संघर्ष है, जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने किया था। तो इस तरह से वो खाली वारली पेंटिंग ही जानी जाती है, लेकिन वो पेंटिंग के माध्यम से भी उन्होंने जो बात रखी है लोगों के सामने, वो अपना जीवन कैसे बिताते हैं, वो सब वारली पेंटिंग के माध्यम से आता है। लेकिन वारली संस्कृति के बहुत सारे गीत है जो उनके त्योहारों में गाए जाते हैं, या फिर जैसे जैसे उनको संघर्ष होता है वो संघर्ष में गाए जाते हैं। और उनकी रहन सहन, उनकी बोली भाषा, उनके गीत, उनके खान पान, उनका जंगलों के ऊपर जो प्रेम है, जो आस्था है जंगल के बारे में, और उनका जंगल के साथ जो रिश्ता है, वो सभी काबिल तारीफ है। सभी हमारा वो काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि वारली आदिवासी ट्राइब्स है, वैसे ही बाकी ट्राइब्स है यहाँ पे, वो उन्हीं के साथ है। हाँ। और ज्यादातर लोग थाना जिला में बहुत सारे थाना जिला है, पालघर जिला है, वहाँ पे बहुत सारे वारली ट्राइब्स है, और मुंबई में भी है। मुंबई में 222 आदिवासी विलेज है, जो गवर्नमेंट का सर्वे है। उसमें से ज्यादातर लोग यहाँ पे आर्य कॉलोनी, जो फॉरेस्ट है, आर्य का जो फॉरेस्ट है वहाँ पे है, नेशनल पार्क में है, मलाड में है, कांदुल में है, गोराई में है। सब जगहों में मिलके 222 आदिवासी पाड़े तो खाली गांव यहाँ पे मुंबई में है। और उनकी एक अलग से पहचान है, उनके गीत है, उनका पहराव है, उनके उनके त्योहार है, वो सभी बहुत ही खुश मिजाज के लोग हैं। हमेशा खुश रहने वाले, नेचर के साथ चलने वाले, अपनी पहचान बनाने वाले। और खास करके उन्होंने उनकी पहचान है कि वारली आर्ट जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको जाना जाता है। और वो वारली आर्ट्स के माध्यम से भी बहुत ही फेमस है, और सबको पहचानने वाले है जैसे है। जी बिल्कुल, ये चीज तो है कि वर्ली कला सिर्फ कला नहीं है, उस कला के पीछे एक संस्कृति है। उस संस्कृति का अपना एक जीवित संस्कृति है, उनका जीवित अपना से। संघर्ष है ना। तो ये आपने बहुत जरूरी बात बताई। आगे बढ़ते हैं, मुझे और एक सवाल, और एक चीज जो मुझे आपसे जाननी ये थी कि आपने ये जो गीत का तरीका है ना, हम्म। मॉडर्न म्यूजिक्स के साथ, है ना, ये बिल्कुल ही हाँ। नया कि जबकि जो पारंपरिक गाने होते थे, हालांकि, हाँ, ये पारंपरिक गीत नहीं है। हाँ, हालांकि आपने उसमें कुछ पारंपरिक धुन का इस्तेमाल किया गया हाँ, है ना। बराबर है। वो जो वारली, वो जो तारपा है उसका इस्तेमाल किया है, जो आदिवासी उनका मेन इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इस प्रकार से गाना लिखना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। गाने मैंने जो बनाए हैं, मेरे मेरे जो गीत है अभी कुछ बन भी रहे हैं। तो ये गाने मैंने जो देखा सामने, मुझे जो दिखा, और मुझे लगा कि हम लोग 1 घंटा भाषण करने से, 1-2 घंटा भाषण करने से अच्छा है कि एक 5-10 मिनट का गाना बनाया जाए, जो बहुत ही पावरफुल होता है, लोग सुनते हैं और उनको मीनिंग बहुत ही लोगों को छूते हैं। तो और वो गीत गीत कोई भी सुनने में उनके पास टाइम भी होता है। अभी जो जनरेशन है उनके पास 1 घंटा भाषण करने से या लिखने से, लिखा हुआ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो मुझे लगा ये गीत बहुत ही पावरफुल रहेगा। और जो हम लोगों ने गीत एक रैप के माध्यम से लोगों के सामने रखा, क्योंकि न्यू जनरेशन है, उनका हम लोगों ने क्या सोचा कि उनके बारे में, क्योंकि वो वही ताकत है आगे 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 जाके। तो फिर हमारे यहाँ पर जो स्वदेशी का ग्रुप है, वो पहले मैं उनको नहीं पहचानता था। तो एक दिन वो आए और सब, उनका बाल बड़े है, दाढ़ी बड़ी है, और उनके साथ बात हुई तो मुझे लगा कि ये कौन है, टपोरी जैसे लग रहे हैं सब लोग, और क्या करेंगे, किस लिए आए हैं। तो हमारे यहाँ पे आए, फिर हम लोगों ने बातचीत चालू की, तो मुझे पता चला कि ये बहुत टैलेंटेड लोग है, और उनका एक अलग सा सपना है, अलग सा एक विश्व है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग मिक्स करके एक गाना बनाते हैं जो आदिवासियों का आदिवासियों के बारे में रहेगा।
तो उन्होंने कम से कम 1-1.5 साल लगा हमें ये गाना बनाने के लिए। हम हमेशा बैठते थे और वो हमारे कल्चर के बारे में बताते थे, हमारे भगवान के बारे में बताते थे, हमारा जो संघर्ष है, उनके बारे में बताते थे। फिर हमारा जो नेचर है, नेचर के बारे में हमारा कैसा रिश्ता है, वो लोगों ने सबने लिख लिया और अलग-अलग जिनका जो पार्ट था अ जो मवाली करके है अखिलेश सुतार, उन्होंने उसका पार्ट लिखा, फिर धर्मेश ने उसका पार्ट लिखा, फिर आरबीएच सौरभ है, उसने उसका पार्ट लिखा और मैंने मेरा पार्ट बनाया। तो ऐसे सब हम लोगों ने पार्ट-पार्ट में बनाया और फिर हम लोगों ने इकट्ठा वो गाना किया और वो गाना बहुत ही पावरफुल हुआ और वो गाने में वो लोगों ने जैसे की मी तो वारली आदिवासी आमच्या पद्धती आहेत ऐतिहासिक या रानाचा मूळ निवासी जीवा आणतो पडसर माती. तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी है वो गाने के माध्यम से उन्होंने बात रखी है और फिर हमें ना चाहिए खोटा विकास, ना ही तुम जैसे चोरों पे विश्वास, मेट्रो बनाने के लिए तोड़ोगे आप ये झाड़, ना बचेगा ये पर्यावरण। तो ये सब बातें वैसे जैसे दिख रही है वैसे लिख ली और मेरा उसमें जो गीत है की माणूस म्हणून जगण्यासाठी आम्हाला सारं करायचं. आज नाही उद्याला मरायचं, मग कशाला मागे सरायचं. वो गीत मैंने एक जो किताब थी जिसका श्रमिकांची गाणी करके तो वो उसमें 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 वर्ड थे। तो मैंने सोचा कि ये वर्ड है ना यहाँ पे लाए जाए इसमें और थोड़ा मैंने उसमें चेंजेस थोड़े से किए और फिर वो गाना इसलिए ऐसा बना ना की माणूस म्हणून जगण्यासाठी आम्हाला सारं करायचं, आज नाही उद्याला मरायचं, मग कशाला मागे सरायचं. इसका मीनिंग ये है ना कि हम इंसान है, इंसान करके जियो और आज नहीं तो कल तो मरना ही है, तो फिर क्यों डरना है? मुझे लगता है कि हमें सभी लोगों को ऐसा ही होना चाहिए कि मरना है तो थोड़ा अलग टाइप से मरे, संघर्ष करके मरे या फिर सच्चाई दिखा के मरे, निडर होके मरे, मरना तो सभी को है। तो इस गाने के माध्यम से मैंने जो हमारे यहाँ पे संघर्ष होता था, हमारे यहाँ पे आंदोलन होते थे, हमारे यहाँ पे जो मोर्चे निकलते थे, तो उस मोर्चे में लोग डरते थे थोड़ा-सा पुलिस को या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के क्योंकि आगे जाके हम अगर अरेस्ट हो गए, हमें तकलीफ हो सकती है। तो मैंने गाने के माध्यम से फिर उनको ढाढ़स में लाया कि आज नहीं तो कल मरना है, तो क्यों डरना है? तो लोग जोश में आ गए और इतना गाना पावरफुल हुआ है कि सभी जगहों पे जहाँ-जहाँ पे आंदोलन होता है, जहाँ-जहाँ पे मेट्रो कार शेड के बारे में, जंगल बचाने के बारे में मुंबई में तो जहाँ-जहाँ पे संघर्ष हुआ है, गाना बजता रहा, लोग गाते रहे और इसमें लोग जुड़ते गए और लोगों को पता चला हाँ यार, मरना है तो ठीक से ढंग से मरेंगे, कुछ करके मरेंगे। तो ये पावरफुल गाना बना और उसमें जो वारली का जो इस्तेमाल किया है वो गाने में, तो वो सब वारली पेंटिंग के बारे में भी दिखाया है, नेचर के बारे में दिखाया है और सब हमारी बात भी वहाँ पे रखी रखी गई है। तो ये सब गाना और बहुत ही अच्छा लगता है। अभी भी मैं भी मेरा गाना खुद का है, लेकिन मैं हर दिन सुनता हूँ। जैसे कि सुबह उठता हूँ पहले ये गाना लगाता हूँ। बाकी के मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि वो गाना हम लोग सुबह-सुबह उठते हैं तो ये गाना सुनते हैं तो हमें थोड़ा-सा हिम्मत आ जाती है। तो वैसे गाने बनते गए। जी, जी। प्रकाश जी हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। उससे यस। पहले हम आपका और एक जो वीडियो है आदिवासी गाना, हम उसको एक बार देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, ओके। दूसरा गाना। या भारत भूचे पहिले रहिवासी, या मातृभूमीचे मूळचे निवासी, आदिवासी आदिवासी आम्ही आदिवासी आम्ही आदिवासी
नातं जुनं माझं अन्न जंगलाचं झाड बेल्या रानात आल्या पाखराचं फल फुल किडा आमास एक सारे जनावर आपला परिवार आधी खात पित फळवावर वेचून शेती केली पुढं पेरून पीक आभाळ भरून आभार पूर्वजांचं नाव नाही त्यांचं कोणत्या कागदात लाल माती लाल रगात याच्या वरच कोणतं देऊ सर्टिफिकेट वाग देव येतो उंबरात घर माझं हिरव्यागार सावलीत पाया संग पाया टाकून डुलत बापाया बाया मिळू नाही चुकून ऐकून राजाचे हुकुम नसे कोणा सावकाराचे अरे लागू जुलूम नका कुणी आमच्या नादाला घाबरत नाही आम्ही कुणाच्या बापाला लागू नका कुणी आमच्या नादाला घाबरत नाही आम्ही कुणाच्या बापाला या जंगलाचे आम्ही सच्चे सिपाही बिरसा मुंडाचे आम्ही सच्चे अनुयायी आदिवासी आम्ही आदिवासी आदिवासी आम्ही आदिवासी घुल मिलकर जीते यहाँ सभी प्राणी पेड़ों की डाली में बैठकर देखो दिखती दुनिया निराली मिलती संतुष्टि जब भी करे स्नान झीलों में क्योंकि वो अपनी संस्कृति वनस्पति और जीवों की करते हम रक्षा जो पूरी करती सारी आवश्यकता इसीलिए हम प्रकृति की करते श्रद्धा আমাদের মুখে গুরু সমৃদ্ধি পাই তখন করি উলু জঙ্গলে সময় কাটাও আর নাও হান্ডি আর চুমুক এখানে না কোনো জাতি চু অথবা উঁচু মাটি থেকে জন্মগ্রহণ আমার সাজাই শরীরে ফুল পাতা এবং অলঙ্কার তীর ধনুক নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা না काळी आई आमची धान्य देते आम्हाला वाघोबा आमचा देव आम्ही पूजतो या त्याला ही काळी आई आमची धान्य देते आम्हाला वाघोबा आमचा देव आम्ही पूजतो या त्याला निसर्गाचे आम्ही सच्चे पुजारी पर्यावरणाचे आम्ही सच्चे पुजारी आदिवासी आदिवासी आम्ही आदिवासी आम्ही आदिवासी झाली पहाट विसळ दुःख पाहून दुकरानात गारवारा शारा देतो कोळ्या उन्हात पाखरू सुरात गात पाहून पडू प्रेमात दव शोषून फुलं सुखात झाड झुलतात फळ उगवतात जिथे प्राणता निवार त्याला जंगल म्हणतात न वाटे त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळतळे आणि कोरड्या गळ्याला वाहता नदीची साथ कुठे कुठे नेते पाया वाट आता होत पाया वाट तुकायाचा भाग अंधारात हृदयात ताला कानाच्या पुण्यात हळूचा करे आवाज मावळतो सूर्य जागे जंगल चांदण्यात दाखवे रहस त्याला जो तशानात साप सळसळतो हरिण दुरून पळतो आदिवासी जगे भीत नसे कोणा या मुंबई नगरीचे पहिले रहिवासी या भारत भूमीचे मूळचे निवासी आदिवासी आदिवासी आम्ही आदिवासी आम्ही आदिवासी व्हिडिओ त्यांनीच बंद केला.
तो दोस्तों अभी हमने यहाँ वीडियो देखा, प्रकाश जी का ही गाया हुआ गाना, आदिवासी। प्रकाश जी, इसके ऊपर आपसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। जैसा मैंने वीडियो को देखा, पूरे मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक, तो मुझे जो समझ में आया कि ये पूरा वीडियो शुरू होता है एक वर्ली जंगल के बीच में, एक घर से शुरू होता है, दिखता है वहाँ पे पेंटिंग्स दिखती हैं, लोग दिखते हैं, महिलाएं जो हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, बच्चे जंगल में खेल रहे हैं, लोग बीच में डांस कर रहे हैं, कोई दीवार में पेंटिंग कर रहा है। एक तरह से जो पूरी वर्ली संस्कृति जो है, जो पूरा जीवन है वहां पे, वो इस पूरे वीडियो में दिख रहा है। और खास बात जो है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो भी चीजें हो रही हैं, इसको जो वागदेव है, वागदेव वीडियो में आपने देखा होगा कि एक तेंदुआ है, उसको वर्ली समुदाय में वो पूजनीय है, उनको वागदेव कहते हैं। वागदेव इन सारी चीजों को देख रहे हैं, वो लोगों के बीच में है। फिर वागदेव जो है वो शहर की ओर जाते हैं, फिर शहर से वापस आते हैं और आकर के वो बच्चों को देखते हैं। और वागदेव और बच्चे फिर दोनों मिलके उस पहाड़ से उस शहर की ओर देखते हैं। तो बहुत ही सिंबोलिज्म है इस वीडियो में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे वीडियो में जो वागदेव है, वागदेव एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है इस वीडियो का। वागदेव, तो वागदेव के बारे में आप बताइए कि वागदेव वर्ली समुदाय में उनका क्या महत्व है, और इस वीडियो में भी हाँ जो सर। वागदेव क्या कहना है। वाघदेव की वारली समुदाय में और आदिवासी समुदाय में, जो मल्लार कोली कोकना और वारली समुदाय है, उसमें पूजनीय है। अ, बिना वेतन वो पूरे जंगल की देख देख हाँ, बिना बिना वेतन वो पूरे जंगल की रखवाली करता है। और जंगल तो हमारा भगवान है, जंगल से हमें सभी चीज मिलती है, तो इसलिए हमें वो बहुत पूजनीय है। और आपने देखा होगा कि इस हम मुंबई में हैं, एक बिग सिटी है ये। सबसे, मुझे लगता है भारत में सबसे बड़ी सिटी है मुंबई। और बिल्कुल। मुंबई में हमारे जो गांव है, हमारे जो विलेज है, वहां पे खाली जंगल है। बाकी पूरे जंगल के सराउंड में पूरे के पूरे बिल्डिंगे है, 100 मंजिले है, 50 मंजिले है। और फिर मेट्रो है, आसपास से गुजर रही है, ट्रेन है थोड़ी दूर, थोड़ी दूरी पे। और फिर एक बीचों बीच एक बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पे आदिवासी तो रहते ही है, लेकिन उनके साथ साथ हिरन है, सांप है यहाँ पे, और स्नेक है बहुत सारे। और खास करके यहाँ पे तेंदुए है, जिसमें बिबटे बोलते हैं, बिबटिया बोलते हैं, और वो हमारे लिए भगवान है। और एक दो नहीं, कम से कम 40 लेपर्ड यहाँ पे है हमारे पूरे जंगल में। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी आधे घंटे में वो हमारे दरवाजे के बाहर आके भी आ, यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि हर दिन वो यहाँ पे आता है। लोगों के लिए वो डरावना है, लोगों के लिए वो बहुत एक डरी हुई चीज, घबराने लायक चीज है। लेकिन हमारे लिए वैसे नहीं, हमारे वो फैमिली मेंबर्स है। हम अगर 4-5 दिन वो दिखता नहीं है, हमें बहुत चिंता होने लगती है कि कहाँ गया होगा, कहाँ किसी ने पकड़ा तो नहीं होगा, किसी ने पिंजरे में, फॉरेस्ट के लोगों ने उसको पकड़ के लेके तो नहीं गए होंगे। फिर दूसरे दिन दिखेगा तो बोलेगा हाँ हाँ है। तो वो हमेशा आता है। कभी कभी हमारा जो खाना बनाने का घर का पिछवाड़ा जो है, जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, जो ओपन है, तो वहां पर भी आके जाता है। एक बार तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे कि वो बातें कर रहे थे, बीवी और मैं और मेरे भाई। तो उतने में वो दरवाजे से आके ऐसे देख रहा है। तो बाकी के लोगों के लिए वो डरावना है, लेकिन हमारे लिए बीवी ने बोला वो देखो कौन देख रहा है हमें। तो मैंने देखा, अरे ये तो लेपर्ड है। तो मेरे दोस्तों ने भी सवाल किए, जो जैसे में मैंने वीडियो डाला हो, क्योंकि हमारे घर के बाहर है ना, वो सीसी कैमरे लगे हुए। तो सीसी कैमरे में वो आया पूरा। तो मैंने वो वीडियो डाला मेरे दोस्तों को कि देखो हमारे यहाँ पे लेपर्ड आया था। तो दोस्तों ने बोला, क्या बोला वो हमें क्या बोलते हो, अ, हंसी मजाक में ले रहे थे, क्या बोलने आया था वो? तो मैंने बोला, वो बोल रहा था कि आप लोग के सोए हो, इतना सारा जंगल कट रहा है, आसपास सभी बिल्डिंग के धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, इतना हमारा घर है, आपका भी है, मेरा भी है, यहाँ के पंछियों का है, यहाँ के जीव जंतु का है, वो बचाना पड़ेगा। आप लोग तो है, आप लोग बाकी के लोगों को भी बताओ कि निकलो घरों से बाहर और ये जंगल बचाओ, हमारा घर बचाओ, आपका घर बचाओ। तो इस तरह से वो हमेशा आते रहता है। और आपने देखा होगा वो गाने में कि सब्जियां लगाते हुए आदिवासी लोग है वहां पे। हाँ, कुछ बच्चे वहां पे पानी में खेल रहे हैं,
और लास्ट एंडिंग में दिखाया है कि वो गाड़ियों के बीच में से वो लेपर्ड गुजर रहा है। तो वहां पे हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे पहले जंगल था जहाँ पे वो गाड़ी है, हाँ वो गाड़ियां है। तो लेपर्ड वहां पे मतलब वहां से गया नहीं है। लेपर्ड लेपर्ड का ही जमीन था वो जो पूरा जंगल है जंगल ही था, लेकिन गाड़ियां वहां पे आ गई है। तो वो थोड़ा सा उस स्थिति में जाके फिर वो आया और उसने देखा कि यहाँ पे मुझे अभी रहने के लिए जो जंगल है वो जंगलों में इतर जीव भी है, इतर अब बहुत सारे प्राणी है, पक्षी है। तो इनका सबका ख्याल भी हमें रखना है। तो वो गाना इसलिए बना कि ये इस गाने के माध्यम से वो बचा कुचा जो जंगल है बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि 3,200 एकड़ जमीन पूरे आरे की जमीन थी पहला। धीरे धीरे वो फिल्म सिटी को कुछ दे दी गई, SRPF को दे दी गई, फिर अभी वेटरनरी कॉलेज को दी, मेट्रो कारशेड के लिए गई। तो अभी थोड़ी थोड़ी थोड़ा सा जंगल बचा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे जीव है। तो वो बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो गाना हम लोगों ने बनाया कि इस माध्यम से हम लोगों तक जा सके और लोगों को इस मैसेज दे सके कि ये जंगल बचाना, ये पेड़ पौधे बचाना, ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री बचाना, ये जो मुंबई का लंग्स है वो बचाना केवल आदिवासियों का काम नहीं है। जो मुंबई में जो लोग भी रहते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जीवित लोग हैं, क्योंकि सांस लेते हैं करके जीवित है, और जीवन हमें यहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन हमें इस इन्हीं पेड़ों से मिलता है। जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है उनकी मरने की बारी आती है, वो काटे जाते हैं, तभी ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आने चाहिए और ये जंगल बचाना चाहिए करके हम लोगों ने ऐसे गीत बनाए हैं और ये गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो पूरा संदर्भ वागदेव का जो था उसका महत्व, और जंगल और संस्कृति का क्या इम्पोर्टेंस, क्यों क्यों जरूरी है, और ये सिर्फ आदिवासियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी सभी, सांस लेने वाले सभी लोगों की, जो जीवित है उनकी जवाबदारी है, वो जिम्मेवारी है। इन सभी लोग की जिम्मेदारी है। प्रकाश जी, हमारा जो ये सीरीज है ट्राइबल फ्यूचर्स फेस्ट, इसका जो मेन थीम वो ये है कि हम आदिवासियों की जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी सोचने की क्षमता है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बराबर। उस संदर्भ में मेरा आपसे सवाल है कि हमने इतना वीडियोस देखा, हमने जो जल जंगल जमीन है ना, जो संस्कृति है, हमने सब कुछ देखा। तो मेरा सवाल यह है कि आप जब बचपन में थे तो क्या आप इसी परिवेश में, आप मतलब आप आपका जो पालन पोषण जो है इसी परिवेश में हुआ, और क्या उस परिवेश ने आपके मन में कुछ प्रभाव डाला कि आप आज इस प्रकार से गीत लिख पा रहे हैं? बराबर बिल्कुल। एक मुझे गाना याद आता है जो हिंदी फिल्म का है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है वो। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन मेरे प्यार पले दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बहुत ही प्यारे दिन थे मेरे बचपन के। और मैं जब छोटा था तभी मेरे मन में भी नहीं आया था कि आगे जाके यहाँ पे अलग अलग जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे, सीमेंट के जंगल खड़े होंगे और हमें यहाँ से फाइट करनी पड़ेगी, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि तभी बचपन मेरा इतना इतना अच्छा था। यहाँ पे तालाब थे, यहाँ पे कुएं थे। तालाब में हम लोग नहाने जाते थे, मछली पकड़ने के लिए जाते थे, कपड़ा धोने के लिए हमारे घर के सब परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग जाते थे। कुआं हमारा था तो कुएं से पानी निकलता था, और वो पानी भी ऐसा था कि 12 महीने उसमें पानी रहता था, और इतना मीठा पानी था, ठंड पानी था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे प्रोजेक्ट आने लगे। जैसे SRPF आया, उन्होंने वो पूरा जंगल हथिया लिया, उसमें हमारा तालाब गया, उसमें हमारा कुआं गया, कुएं पे अभी बिल्डिंग बनी हुई है। तालाब में बोटिंग चालू किया उन लोगों ने, वहां पे हमें जाने से मना कर दिया है। हाँ, फिर यहाँ पे फिल्म सिटी आई तो फिल्म सिटी ने शूटिंग चालू किया। वहां पे हमारे जो गांव थे, क्या हबाले पाड़ा, नांगरमुड़ी पाड़ा, देवीचा पाड़ा, मोराचा पाड़ा, निम्बार पाड़ा, ये सब पाड़ा उनमें गए। तो अभी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है बिजली लेने के लिए, रास्ते बनाने के लिए, जो भी करना है उसमें जाता है। तो धीरे धीरे सब इतना चेंजेस होने लगा, सिटी जैसे बढ़ने लगी, लोग आबादी बढ़ने लगी, सभी लोग जंगल की तरफ आने लगे। उनमें वो ख्याल ही नहीं रहा कि ये जंगल हमारा है, सभी लोगों का है,
और ये रहना चाहिए। मेरे बचपन के टाइम में मैंने देखा है कि मेरी दादी, मेरी माँ गीत गाती थी काम करते समय। कोई भी खेती में काम करता हो या बर्तन मांजता हो या खाना बनाता हो तो गीत गाते थे। और वो जब गीत शुरू होता था तो उस गीत का लाउड धीरे-धीरे बढ़ने लगता था हर दिन। तभी मुझे पता चलता था कि कोई तो त्योहार आ रहा है हमारा। हाँ, आदिवासियों के त्योहार ज़्यादा नहीं है। अभी तो सब मिक्स अप हो गए, लेकिन आदिवासियों के त्योहार जो है सिमगा है और वाघ बारस है। तो ये जो त्योहार है, वो त्योहार के गीत वो लोग गाते थे ताकि और तभी हमें पता चलता था कि कोई त्योहार आ रहा है, क्योंकि कैलेंडर नहीं थे हमारे पास तभी। और वो सब सभी जगहों पे पूरे गाँव में लोग गीत गाते थे काम करते समय, इतना कष्ट का काम करते थे, खाने को एक वक़्त की रोटी भी कभी-कभी नहीं मिलती थी, लेकिन गीत गाते थे। खुशियाँ उनके सब जीवन में थी। और वो जैसे वो त्योहार नज़दीक आता था तो पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होके गाना गाते थे, बजाते थे, उनके खुद के इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन अभी नहीं वैसे हो रहा है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी पुराने लोग हैं, लेकिन उनके मन से वो गीत गायब हो चुका है। क्योंकि हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है, हमें यहाँ से उठा के कहीं बिल्डिंगों में डाला जाता है, जाने की धमकियाँ दी जाती हैं। कई लोग तो गए भी बिल्डिंगों में जो सिटी के बिल्कुल नज़दीक थे, वो चले गए वहाँ पे और हमें भी जाने की नौबत आएगी शायद, ऐसा एक माहौल बना है। इसलिए हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। तो इस संघर्ष के दौर में इस हमेशा हमारे सर के ऊपर एक तलवार जैसी टंगी हुई होती है कि कभी हमें यहाँ निकाला जाएगा, कभी हमारे अधिकारों के ऊपर आँच आएगी, कभी हमारा जंगल नष्ट किया जाएगा। हमारे जो स्रोत है, जो हम जहाँ से हम जंगलों से सब्जियाँ चुनते हैं, हम लोग केकड़े करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, हमारा पूरा विश्व ही जंगल है, वो हमसे छीना जाएगा। तो एक डर हमेशा मन में रहता है और इसके लिए हमारे आदिवासियों के जो मन में ऐसा एक डर सा बैठा है, तो गाने कहाँ गाएँगे? गाने तभी निकलते हैं ना कि मन साफ हो, मन में कोई डर ना हो, मन में कोई चिंता ना हो। लेकिन अभी पूरा चिंता और डर से भरा हुआ मन है, तो उसमें गाने नहीं आते। तो ये बचपन जो मेरा बचपन था, जो माहौल था, वो सभी चेंज हो गया है। अभी हमें महीने में 1 से 2 बार संघर्ष करना पड़ता है। हमेशा यहाँ पे संघर्ष के लिए तैयार ही रहना पड़ता है। हाँ, अ, हमारे गीत है की नको ती बंगला गाडी, माझी बरी आहे शेतीवाडी र. नको तुझी बिल्डिंग भारी, माझी मुझे बंगला गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे खेती-बाड़ी मेरी अच्छी है। इस गाने के माध्यम से मैंने थोड़ा-सा लोगों को और जनता को ये करना चाहा। तो ये मेरा बचपन था, वो मुझे लौटाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं मेरे बच्चों को बताता हूँ कि मैं कैसे जीवन में जिया था, कैसे माहौल था तभी। एक गीत गीत लोग गाते थे, डांस रहता था, हमेशा लोग एक-दूसरे से मिलते थे तो हँस के बातें करते थे। अभी तो उनके मन में चिंता है, टेंशन है, ये सब अभी हमें नहीं हम लोगों को मिला है और हमें लगता है कि हमारा जीवन ही ऐसा ये हो जाएगा संघर्ष करते-करते। जी, बिल्कुल ज़मीन का संघर्ष है और संस्कृति का भी संघर्ष, दोनों ही बरोबर. का ही संघर्ष है। प्रकाश जी, इसी संबंध में और एक चीज़ मैं जो जानना चाहूँगा कि आपके जो गीत हैं, है ना? जो आपके समुदाय की आवाज़ को, जो आर्य जंगल है, उसकी आवाज़ को उठाते हैं वहाँ पे। तो आप जब बाहर परफ़ॉर्म करते थे, जब आपने बाहर परफ़ॉर्म किया, तो इसका प्रभाव बाकी लोगों पर कैसा पड़ा? नहीं, उनको भी अच्छा लगा वो गीत, बहुत लोगों को अच्छा लगा क्योंकि वो आदिवासी नहीं है। बाहर जाते हैं तो वहाँ के हमारे एक ग्रुप होता है जो हम लोग गाते हैं वही आदिवासी है और स्वदेशी के कुछ जो कलाकार है वो है। लेकिन बाहर का जो युवा पीढ़ी है ना, वो भी अच्छी भली-भाँति जानता है कि आदिवासी सही जा रहे हैं। और मुझे भी हमेशा मैं बोलता हूँ कि हम यहाँ के मेहमान हैं, पृथ्वी के हम लोग मेहमान हैं, हम लोग ये मालिक नहीं है। हाँ, तो हमें मेहमानों जैसा यहाँ पे रहना है, यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है, यहाँ पे जो पर्यावरण है उसको हानि नहीं पहुँचानी है, यहाँ पे हमें मेहमानों जैसा रहना है, बाकी अन्य जीव जैसे रहते हैं, जैसे कि लेपर्ड है, साँप है, पंछी है, प्राणी है, ये देखो ये बिल्कुल भी हमारे ये जो पर्यावरण को बाधा नहीं पहुँचाते। वो उनको पता है कि यहाँ पे कुछ दिनों के लिए हम आए हैं, वैसे रहना है। उनके घर भी बनाने की वो जो ये है वो पहले जैसे ही है। हम थोड़े से अलग है।
हम लोग गाने से पहले ये सब बताते हैं उन लोगों को कि आदिवासियों को, मेरा एक गीत है, एक वाग देवा करके गीत है, उसमें मैंने उनको बताना चाहा है कि आप लोग आदिवासियों को हमेशा पिछड़े समझते हैं, हमेशा उनको अनपढ़ समझते हैं या फिर निचले जाति के समझते हैं, उनको अक्ल नहीं है समझते। लेकिन इस गाने के माध्यम से मैंने उनको एक बताना चाहा की कळली ही नाही जाना या निसर्गाची महती, हिरवा देव म्हणती ज्याला हे आदिवासी। आप लोगों को ये जो ग्रीनरी दिख रही है, ये खाली ग्रीन दिखता है, उनका महत्व आपको पता नहीं, लेकिन आदिवासियों को भली भांति पता है। अगर हम लोग पर्यावरण को संभालेंगे तो पर्यावरण हमें संभालेगा। तो आदिवासी भली भांति जानते हैं कि पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचानी है, और वही इस पर्यावरण को बचाएगा। अगर आपको पर्यावरण चाहिए और ये जो आपका जीवन सुलभ होना है, तो आदिवासी की जो जीवन शैली है, उनके जो रहन सहन है, उनके जो त्योहार है, उनके पर्यावरण, इन नेचर के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा जो उनकी है वैसे ही आपको करनी पड़ेगी, तो ही आप आगे जाके अच्छे जीवन बिता सकते हो, या वरना बहुत आगे जाके बहुत ही मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग जब गीत गाने जाते हैं, तो एक तो ये गीत उनको पता है कि ये वारली रिवार्ड बहुत ही फेमस है, और बहुत बड़े तादाद में वो लोग आते हैं और हमें साथ देते हैं। और हमेशा जब हमारा यहाँ पे आंदोलन भी होता है, आरे के अंदर हम लोग जंगल बचाने के लिए जब आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन में भी वो शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी एक गुंतवणूक बोलते हैं उसको क्या। हम लोग खाली गाना गाने नहीं जाते वहां पे, हम इस आंदोलन के लिए लोग इकट्ठा करने जाते हैं। हमारे जैसे समविचारी लोग जो है, जो नेचर को मानते हैं, जंगल का महत्व जानते हैं, वो इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। हमारा गाने का मतलब वही होता है कि क्या बोलते हैं, ये प्रसिद्धि या ये नहीं हमारा मतलब है। तो लोग जुड़ जाए इस आंदोलन में, लोग समझ पाए पर्यावरण के बारे में, ये उसका मकसद होता है। जी, आपने बहुत जरूरी बात बताई। और जो बात हाँ, आपने कही कि आदिवासी खुद को मालिक नहीं समझते हैं, तो हाँ, मुझे एक कहावत याद आई। वो मुझे याद नहीं है कि ये किस आदिवासी समुदाय की है, लेकिन शायद ये उत्तरी अमेरिका के किसी आदिवासी समुदाय की थी। वो कहावत कुछ ऐसी थी कि वी डू नॉट ओन लैंड, वी बोरो इट फ्रॉम आवर नेक्स्ट जनरेशन। हम जमीन के मालिक नहीं हैं, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी से उधार में लेते हैं। बराबर बराबर। तो जो आपने जब बात कही जमीन के मालिकाना चीज को लेकर के, आदिवासी खुद को मालिक नहीं समझते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने चारों ओर जितने भी सजीव हैं वो उनके प्रति काफी संवेदनशील रहते हैं। तो ये जो समझ है प्रकृति को लेकर के, जीवन को लेकर के, ये समझ बिना पढ़े लिखे आदिवासियों में कैसे आई, आप में कैसे आई, और जो बाकी आदिवासी हैं उसमें कैसे आई? अ, मैं इसके लिए मेरी बीवी का उदाहरण देना चाहूंगा, प्रमिला जी। यहाँ पे बैठे सुन रही हो। अ, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसको आरे की शेरनी बोला जाता है, आरेची वागिन। जब भी कहीं पर यहाँ पर कोई भी पेड़ काट रहा हो या फिर जंगल को हानि पहुंचानी हो, तो वो एक महिला का हमारा संगठन है, वो उनको लेके वो वहां पे जाते हैं। अभी भी मेट्रो कारशेड के आंदोलन में वो 3 दिन जेल में रही। उनका कहना यही है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं जंगलों से पढ़ी हूँ। मैं स्कूल में नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे ये जो वातावरण है, ये पर्यावरण है, ये जंगल है, ये बहुत कुछ सिखाता है। तो ये सीख हमें मिली है वहां से, क्योंकि हमारा कहना यही है कि हम लोग एक दाना जमीन के अंदर बोते हैं, एक चावल का दाना एक जमीन के अंदर एक दाना बोते हैं, तो वो 4 महीने में हमें 1000 गुना देता है, रिटर्न देता है। तो एक ताकत है इस जमीन के अंदर। वाटर तो आपको पता है, वो तो जीवन ही है। और जंगल तो हमारा पूरा कल्चर उसमें छिपा हुआ है, हमारा जीवन ही उसमें व्यतीत होता है। मैंने कई बार बोला है कि हम जैसा पानी के बगैर मछली नहीं जीवित रह सकती, हम लोग जंगल के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, चाहे जो हो हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन जो बचा कुचा जंगल है, क्योंकि अभी हम समझदार हुए, हम लोग उसको बचाएंगे। तो
बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं कि आदिवासी लोग हैं, ये तो उनको पढ़े लिखे नहीं है, जो कपड़े भी ठीक से पहनते नहीं है, लेकिन वही सच्चाई जानते हैं। और आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ का जो पॉलिटिशियंस होता है या फिर बिल्डर्स होता है, वो बोलता है कि देखिए आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे, हम आपको सुधारना चाहते हैं, हम लोग आपको बिल्डिंगों में लेके जाएंगे, वहाँ पे बिजली पानी शिक्षा सब आपको सुविधा यहाँ मिलेगी, तो आप सुधर जाओगे। तो हम कहते हैं अरे पहले हमें बिगड़ने तो दो, फिर सुधरने की बात करो। हम लोग बिगड़े हुए लोग नहीं है, हम लोग चाहते हैं, हम लोग समझते हैं बिल्डिंगों में हमारा जीवन व्यतीत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक बार गए तो पिंजरे में जैसे गए। यहाँ पे हमारा कल्चर है, और मैं यहाँ इतना रीच हूँ, मैं लोगों को भी बताता हूँ यहाँ का हर ट्राइबल, और यहाँ का ही क्यों पूरे हमारे इंडिया का भी ट्राइबल इतना रीच है कि इतना बड़ा उसका घर है, उसके घर के सामने बहुत बड़ा आंगन है उसका, जो बिल्डिंगों में 1 फीट के ऊपर मिलता है, 5 फुट 6 फीट का। यहाँ पे इतना बड़ा उसका आंगन है, फिर उसके पास इतने सारे पेड़ है पौधे है, उसके पंछी है प्राणी है लेपर्ड है, और नदियां है तालाब है, ये तो उसी उसी का तो है। अगर एक बार हम लोग बिल्डिंगों में गए तो वहां से हम लोग नहीं बोल सकते ये मेरा है। जब तक मेरा गांव में घर है, यहाँ पे मैं टिका हुआ हूँ, तब तक ये मेरी प्रॉपर्टी मेरी है। तो ये प्रॉपर्टी छोड़ के कौन कौन जाएगा बिल्डिंगों में? तो ये बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आदिवासी भली भांति जानता है कि वो बहुत ही रीच है, और वो बहुत ही खुश है, सुख शांति से रहता है यहाँ पर। उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन टेंशन की बात यही है कि यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं, उसके उसके जो कल्चर है उसके ऊपर उसका आघात करते हैं, उनके जमीन छीनना चाहते हैं, उनके गांव छीनना चाहते हैं, उनकी संस्कृति छीनना चाहते हैं, उनका जीवन ही पूरा नर्क बनाना चाहते हैं। यही उनके लिए थोड़ा सा ये है। नहीं तो मुझे तो लगता है कभी कभी कि आप हमें बिजली भी ना दो, हमें पानी भी ना दो, हमें कुछ ना दो, लेकिन हमारे इधर यहाँ यहाँ पे दखल अंदाजी मत दो, हमारे जंगलों में आप मत आइए। हम लोग हम जंगलों से उतना ही देते हैं जितना हमें चाहिए, हम लोग उसका व्यापार नहीं करते, हम उसका बिजनेस नहीं करते। तो जंगल के बारे में कोई अगर मतलब यहाँ पर भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखिए यहाँ इस प्रोजेक्ट में अगर 1,000 पेड़ कटेंगे तो हम लोग 10,000 पेड़ लगाने वाले हैं। तो जो बाकी के लोग जो सुनते हैं, जो आदिवासी नहीं है, आदिवासियों को भली बात पता है, लेकिन बाकी के लोग क्या जानते हैं, अरे 1,000 पेड़ कटने वाले हैं तो 10,000 तो गवर्नमेंट लगाने वाली है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि खाली पेड़ नहीं कटता, एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछियों के घोंसले होते हैं, फिर छिपकलियां होते हैं, स्पाइडर होते हैं, हाँ अलग अलग जीव होते हैं। और अन्य जीव तो ऐसे भी है कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते, तो एक बड़ी बड़ी संस्था ही होती है उस पेड़ के ऊपर। और वैसे जो हजारों पेड़ काटे जाएंगे तो ये पूरे के पूरे जीव नष्ट हो जाते हैं। तो उनके बारे में उनको उनको हानि पहुंचाने के लिए आपको किसने अधिकार दिया है? और दूसरी बात ये भी है ना कि पेड़ के बदले पेड़ लगाने की बात अलग है, लेकिन पेड़ भी जीवित है, वो भी एक सजीव है, तो उसका भी जीवित रहने का अधिकार है ना। तो वो नहीं हम लोग जानते कि वो पेड़ का भी अधिकार है, जैसा हमारा अधिकार जीवित रहने के लिए है, हमें विकास चाहते हैं लोग, तो वैसे वो पेड़ का भी एक अधिकार है, वो पेड़ के बारे में कोई जानता नहीं है। और हम लोग पेड़ नहीं लगाते, हम एक बच्चू लगाते हैं जो 150-200 साल लगेंगे पेड़ बनाने के लिए। तो ये सब पता है आदिवासियों को, तो आदिवासियों को गंवारा बिल्कुल ना समझा जाए। उसके जैसा इस नेचर को जानने वाला, इस पर्यावरण को जानने वाला कोई नहीं है। तो मैं बहुत समाधानी हूँ कि मेरा आदिवासी समुदाय में जन्म हुआ है और मैं एक आदिवासी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल प्रकाश जी कि जो आदिवासी समुदाय संस्कृति है, उसके लिए परिवार केवल सिर्फ इंसान ही नहीं है, बल्कि परिवार हर छोटे से लेके सब बड़े जीव, पेड़ सब हैं और ये सभी उनके चाहे वो चित्र हो, प्रकृति कुछ भी तत्व हो, वो उनके गानों में, कहानियों में वो सब सब शामिल सब रहता आता है, है। सब बिल्कुल। आता है। प्रकाश जी मेरा और एक जो सवाल है कि क्योंकि समय भी होने ही वाला है और हाँ। हम ऑडियंस जो लोग हैं उनसे भी सवाल लेंगे, तो तब तक के लिए जो भी इस सेशन को सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में प्लीज डालिए एंड जस्ट फील फ्री टू पोस्ट एनी ऑब्जर्वेशन और कमेंट यू वुड लाइक टू है ना मेक, जस्ट पोस्ट ऑन द चैट बॉक्स। बहुत खुशी होगी हमें आपके प्रश्नों को प्रकाश जी के सामने में रखने के लिए।
तो प्रकाश जी, ये एक चीज जो अब तक है कि आदिवासियों को विकास समझाया जाता है कि ऐसा बिल्डिंग होता है, ऐसा रहना चाहिए, है ना, ऐसा स्कूल होना चाहिए, ऐसे सभ्य होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बतौर एक आदिवासी समुदाय का होते हुए, एक आदिवासी होते हुए, आपके लिए विकास का क्या मतलब है? आप विकास कैसे देखेंगे? अ, मुझे विकास से मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मुझे शेर या लेपर्ड से डर नहीं लगता, मुझे विकास के नाम से डर लगता है। मैं सभी से फाइट कर दूंगा, लेकिन ये विकास है बहुत डेंजरस। और मुझे पता नहीं चलता कि ये विकास का डेफिनेशन क्या है, और ये विकास कौन चाहता है, किसके लिए है। जहां पे विकास आता है, बोलते हैं यहाँ पे विकास करना है। इस विकास में इतने सारे पेड़ कटे जाएंगे, इतने सारे जंगल नष्ट हो जाएगा। लेकिन जहां पे विकास लाने वाले हैं, वहां के लोगों को एक क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं उनको विश्वास में लेते, क्यों नहीं उनको पूछा जाता कि यहाँ पे एक कुछ आने उनके उनके मन के खिलाफ ये सब हो रहा है। और विकास, मुझे तो बिल्कुल ही विकास नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग जितना जोर से विकास करेंगे, जितने जोर से हम लोग इस धरती के जो नेचर है, जो पेड़ पौधे है, जंगल है, उसको नष्ट करेंगे, उतने जोर से हम लोग विनाश की ओर जाएंगे। और विकास का डेफिनेशन मुझे पता नहीं है, और ये कौन फिक्स करता है कि ऐसा विकास होगा। और विकास, मुझे तो लगता है कि विकास का जो ये है ना, तो उनका सभी पैसे का पैसे के साथ उनका रिश्ता है। जो भी यहाँ पे विकास होता है, विकास कितना भी इंसानों के लिए करोगे, आप कितना भी करोगे, बुलेट ट्रेन भी आएगी, तो उसके आगे और भी कुछ लाने की सोचेंगे वो लोग। मैं बताना चाहूंगा, जो कोरोना काल था, कोरोना जब चालू था, वो सीजन था, वो जो वक्त था, 2-3 साल का, कहाँ था विकास? हाँ, सभी लोगों को पता था, सभी लोगों को ये जरूरत तीन ही थी, वो जो अन्न, वस्त्र और निवास, उसके बगैर उनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग उनको इतने सारी जरूरत पैदा करते हैं, और उनको वो खुद की जरूरत लगती है, जरूरत इतनी नहीं है। हम लोग छोटे से कम विकास में भी, कम पैसों में भी हम लोग खुश रह सकते हैं। तो विकास मुझे बहुत, मैं देख रहा हूँ अभी सभी जगहों पे विकास, ये विकास नहीं है, बहुत जोरों से होने वाला विनाश है, हमारे आंखों के सामने होने वाला है। और हमारे अगली जनरेशन के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा गड्ढा बना रहे हैं, उनके उनके मौत की तरफ उनको लेके जा रहे हैं, ये इस विकास के माध्यम से, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी काफी अच्छे तरीके से आपने बताया कि विकास के मायने क्या होते हैं, और जब भी बात विकास की होती है तो इसकी परिभाषा कौन तय करता है। और कभी ये नहीं पूछा जाता है आदिवासियों से कि क्या आप विकास चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो कैसा चाहते हैं। उनसे कभी किसी प्रकार का सलाह जो है वो नहीं नहीं लगाया जाता है। तो प्रकाश जी, एक मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, और उसके बाद फिर हम आज के इस सत्र को समापन की ओर ले जाएंगे। तो युवाओं को लेकर के आप क्या क्या कहना चाहेंगे, जो आदिवासी युवा हैं, जो इस समय में बहुत क्रिएटिव हैं, तो जो इस समय में बहुत क्रिएटिव हैं, जो जंगलों से निकले हैं, बाहर शहर में बसे हैं, वहाँ उनकी पहचान को, उनकी आदिवासियत को काफी नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, उन्हें बहुत बैकवर्ड समझा जाता है। ऐसे में यूथ जो है, आदिवासी यूथ जो है, वो कई बार अपने आप को अलग तरीके से असहज महसूस करता है, खुद को देखता है उस तरीके से। तो आदिवासी युवा जो है उसको, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे लगता है ना, मुझे हमेशा लगता है, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। हाँ, हमारे कार्यकर्ता भी सामान्य है, मेरी बीवी भी सामान्य है। लेकिन हम लोगों ने खुद को पहचाना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस हद तक काम कर सकते हैं, किस हद तक सोच सकते हैं। मुझे भी युवाओं को यही कहना है कि आप खुद को पहचान। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं मेरे दोस्तों को पहचानता हूँ, मैं मेरे रिलेटिव को पहचानता हूँ, सभी लोगों को, लेकिन मैं खुद को नहीं पहचानता। तो मुझे लगता है कि हर युवाओं ने खुद को पहचानना चाहिए। हम लोग बहुत पावरफुल है, हमें बहुत करने लायक चीजें हैं। और मैं हर युवा को ये भी कहना चाहूंगा कि आप कमाओ, आप आपकी खुद की प्रगति करो, लेकिन आपके समाज को, इस जो पर्यावरण है, नेचर है, उनके लिए भी आपका एक वक्त होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ आपको देना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा।
और दूसरी बात ये भी है ना कि यहाँ पर हमारे घर बहुत बार स्टूडेंट आते हैं अलग अलग कॉलेजेस से, कुछ स्कूल से, या फिर अलग अलग संस्था से। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप है ना खुद को टटोल कर देखो एक बार, शायद आप जीवित हो सकते हो। क्योंकि अब इस जगह पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो जीवित नहीं है। उनको लगता है हमेशा कि खाली हमें कमाना है, हमारे खुद के बारे में सोचना है, हमारे घर लेने हैं, गाड़ी लेने हैं, हमारा विकास करना है खुद का। तो ऐसे लोगों को मैं जीवित नहीं समझता हूँ, क्योंकि जीवित तो वही होता है ना कि मैं मरे हुए को मैं देखा हूँ कि उसको हम लोग भोगते हैं, काटते हैं, तो उसको वो आ भी नहीं करता, वो हिलता भी नहीं। लेकिन हम लोग जीवित है, हमें हमें दिखता है आगे क्या हो रहा है। ये जो पर्यावरण नष्ट हो रहा है, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। शिक्षा का मतलब यही है ना कि शिक्षा अगर हमने ली है तो हमें ये अत्याचार, अन्याय, जो जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। ये शिक्षा का मतलब होना चाहिए। जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, और जो जिसने वो लिया है वो गुर्राएगा जरूर। वो क्या बोलते हैं उसको, अ, आवाज जरूर करेगा, वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो ये युवाओं को मुझे यही कहना है। और आप में बहुत ही हिम्मत है, और मुझे आशा है, मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ कि ये युवा जो है वही कुछ कुछ बदलाव करेंगे। हमारा कर्तव्य बनना चाहिए, हमारा इस हमारे समाज के लिए, हमारे इस धरती के लिए। जैसे कि हम लोग, मैं खुद को, मुझे माँ ने जन्म दिया, लेकिन मुझे इस पृथ्वी ने भी जन्म दिया ना, इस अर्थ ने जन्म दिया, इस अर्थ के ऊपर मेरा जन्म हुआ है। तो अर्थ भी मेरी माँ है। तो अर्थ पर अगर कोई गलत काम होता रहेगा, यहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय किया जाता रहेगा, उसको अगर तकलीफ दी जाती होगी, उसको कहीं पे काटा जाता होगा, तो मुझे उसका दर्द महसूस होना चाहिए, मुझे आवाज उठाना पड़ेगा उसके लिए। तो मैं ये युवा से चाहूंगा कि अगर आपका युवा युवा पीढ़ी है आपकी, आप युवा हो, तो आपका खाली खेलना कूदना मौज मजा करना ये तो आपका बनता ही है, लेकिन एक आपकी जिम्मेवारी ये भी है कि समाज के लिए कुछ करे, इस अर्थ के लिए कुछ करे, इस परिवार के, जो हमारा बड़ा परिवार है जिसमें सब आते हैं, सब जीव जंतु आते हैं, तो उसके लिए कुछ करे। तो ये मेरा कहना है उनसे कि हमारी वो जिम्मेवारी बनती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। बिल्कुल आपने कहा, और इसको एक तरह से आज के सत्र के अंदर में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि चाहे वो वर्ली समुदाय हो, उनकी कला हो, या फिर आदिवासी समुदाय हो एक वृहद रूप से, चाहे उनका रहन सहन जीवन हो या उनकी संस्कृति हो, उनके गीत हो, उन सारी चीजों में वो इस धरती के हर एक लोगों की आवाज है। वो इस धरती की आवाज है। उनका गाना, उनका नाचना, उनका पेंटिंग करना, वो केवल उनकी संस्कृति के लिए नहीं है। उनकी संस्कृति इस समूचे विश्व के लिए है। तो इस ये पूरे विश्व के लिए ये गीत है, और ये जो भी आनंद है, ये गाने हैं, नृत्य हैं, ये पूरी धरती में जीवन को संजोने के लिए हैं। और जैसे प्रकाश जी ने कहा कि हमें संवेदनशील होना होगा इस धरती को लेकर के, क्योंकि इस धरती ने हमें जन्म दिया है। तो इस धरती में जीवन को जीवित रखने के लिए ही आदिवासी समुदाय जो है वो अपने गीतों को, अपने कहानियों में इन सारी चीजों को शामिल करते आया है, जो अपने पुरखों से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस चीज को बांटते हुए आए हैं। और अभी तक वो संघर्ष, हर एक रूप में वो संघर्ष जारी है। भाषाई संघर्ष है, सांस्कृतिक संघर्ष है, जमीन को लेकर के संघर्ष है। लेकिन इन सबों के बीच में प्रकाश जी जो है एक संस्कृति कर्मी के रूप में, एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमें बताया कि कितना जरूरी होता है जंगलों को बचाना और संस्कृतियों को बचाना। कि जंगल के बिना संस्कृति कुछ नहीं है, और संस्कृति के बिना जो जंगल है वो भी कुछ नहीं है। दोनों का आपस में एक रिश्ता है, और शायद इसी को हम, अंग्रेजी में एक शब्द है एपिस्टेमोलॉजी, इसी को ही हम कहते हैं। तो आज के सत्र के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको हमारा कल का जो सेशन है ट्राइबल फ्यूचर्स 2.0 का, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। कल हमारे साथ अनिल टुडू संथाल समुदाय से, और अरमान जमुना हो समुदाय से, और श्रीधर माझी गोंड समुदाय से, ये तीनों फिल्म मेकर हैं। और कल इनके साथ एक सेशन होने वाला है, ग्रीन हब के फेलोज हैं। हम कल इनकी हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे, शिक्षा का सहारा, ब्रिज और स्कूल हमारा, शिक्षा के ऊपर और समुदाय के ऊपर की फिल्म है। आप में से जो भी
इन चीज़ों को लेकर के दिलचस्पी रखते हो, कल 3 बजे आप ट्राइबल डिज़ाइन फोरम पे जा करके इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरा कार्यक्रम, पूरा कैलेंडर वेबसाइट पर मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जोहार। जोहार।